Hello, students. Good morning. Today we shall continue from Unit 3rd of the chapter What Happened to the Crocodiles. We have completed the first two units in the previous videos. So, what had happened in Unit 2? Makara, who was the head of the reptiles, had ordered the snakes. To go out from the forest. मकरा जो कि हेड था रेप्टाइल्स का, उसने ऑर्डर दिया था सारे रेप्टाइल्स को एक के बाद एक, लास्ट जो थे वो स्नैक्स थे, उनको फॉरेस्ट से चले जाने के लिए. We shall see in this unit what happens. The lizards were also ordered to leave, and the whole forest now belonged to Makara and his group. The last one were the reptiles that were called the lizards. Lizards तो जो थे वो लास्ट रेप्टाइल्स थे जो कि बचे हुए थे फॉरेस्ट में, और हम देखेंगे कि इस यूनिट में वो लीजर्ड्स को भी फॉरेस्ट से जाने के लिए बोलता है. The crocodiles faced unforeseen problems in the absence of their fellow reptiles. Fellow reptiles जो थे, जो सारे reptiles थे, उनके जाने के बाद crocodiles बहुत सारे problems face करते हैं. They soon realize that their happiness lay in their fellow creatures' happiness and homecoming. So उनको realize होता है end में कि उनका happiness उनके fellow creatures, उनके fellow reptiles के साथ ही है, उनके बगैर नहीं है. Okay, we shall continue. A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. कुछ हफ्ते बीत गए. उसके बाद क्या होता है कि फॉरेस्ट के जो एनिमल्स थे, जो क्रोकोडाइल्स जो बच गए थे, वो फेड अप हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. The rats, now that there were no snacks to eat them, the rats. So परेशानी की वजह कौन थे? रैट्स थे, क्योंकि उनको खाने के लिए स्नैक्स नहीं थे फॉरेस्ट में. The rats had taken over the forest. So पूरे फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में रैट्स ने कवर कर लिया था. And they were having a wonderful time. They were everywhere, on the trees, on the grass, in the bushes, on the ground. And everywhere there were rats, only rats. हर जगह फॉरेस्ट में सिर्फ रैट्स ही थे. They ate of the eggs of the lizards and crocodile. जो lizards थे, जो crocodiles थे, उनके eggs को उन्होंने खा रहे थे वो. There would be no babies that year. उस ईयर कोई भी किसी भी रेप्टाइल्स के बेबीज़ नहीं होने वाले थे, क्योंकि जो रैट्स थे उनके सारे अंडे उन्होंने खा लिए थे. There would be no babies that year. Makara's own nest of eggs had been chewed up. मकरा का खुद का भी जो अंडे थे उसको भी उन्होंने खा लिए थे. Then Makara had a great idea. He called a meeting of the crocodiles and said, Wouldn't it be wonderful if we, the crocodiles, could have the whole jungle for ourselves? So उसके दिमाग में फिर से आइडिया आता है कि हमारे लिए कितना अच्छा होगा कि पूरा जंगल हमारे अंडर रहे. No one but us, कोई भी नहीं, सिर्फ हम ही हम. These lizards, now just look at them. इन lizards को देखो कैसे दिख रहे हैं. They have the strangest habits and some of them even change color. उनके पास बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट मतलब सबसे बेकार, सबसे ख़राब हैबिट्स हैं उनके, और वो कलर भी चेंज करते हैं. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन 1 minute एंड रेड द नेक्स्ट? हम ऐसे लीजर्ड को कैसे बिलीव कर सकते हैं जो अभी ग्रीन होता है और कभी वो रेड हो जाता है, जो कि कलर चेंज कर रहा होता है. Let's get rid of them. By now, the crocodiles were really scared of Makara. So अभी crocodiles भी मकरा से डर रहे थे. So they clapped and cheered. वो clapping कर रहे हैं, cheering कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं. Makara was pleased. The lizards left the forest, some with their babies on their backs. जो lizards थे वो अपने babies को अपने back में उठाकर वहाँ से चले गए. But now, when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupatti, all kinds of awful things began to happen. लेकिन अब क्या हो रहा था कि मकरा सोच रहा था कि सारे रेप्टाइल्स को यहाँ से भगा देने के बाद हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होगा, लेकिन उसका बहुत ही उल्टा हो रहा था. लाइफ हैड बिकम ऑफुल फॉर द रेप्टाइल्स. उनका लाइफ उनके लिए ऑफुल हो गया था. To begin with, the rats grew bolder by the day.
धीरे धीरे क्या होता है कि रैट्स बहुत ही बोल्डर हो जाते हैं, बहुत ही ब्रेव हो जाते हैं. दे बिकम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न समरसॉल्ट्स ऑफ द क्रोकोडाइल्स बैक. सो बहुत ही फियरलेस हो जाते हैं, वो हर तरफ जंप करते हैं. देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स. फ्रॉग्स भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे फॉरेस्ट में, और उनको खाने के लिए क्रोकोडाइल्स के अलावा कोई भी नहीं था. एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स. दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगिन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स. वो बड़े बड़े फ्रॉग्स छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को भी खाने लगे. And the insects, now that the lizards were gone, there were millions of them and growing bigger and nastier by the day. और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी बढ़ गए जो कि लीजर्ड्स खाते थे, जो खाना थे लीजर्ड्स का. लीजर्ड्स के चले जाने की वजह से उनकी मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई. इट वॉज़ अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स. बहुत ही भयंकर समय था क्रोकोडाइल्स के लिए. उनका लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका था. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम. दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर फॉरेस्ट. वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि फॉरेस्ट को क्या हुआ था. देन वन डे ए स्क्विकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग्स. वी नो व्हाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी, डोंट वी. सो उसमें से एक छोटे से वॉइस बोलता है, स्क्विकी वॉइस बोलता है, क्या हमें सच में नहीं पता कि इस जंगल की हालत ऐसी क्यों हुई है. सडनली एवरीवन वाज साइलेंट. हर कोई साइलेंट हो जाता है. दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस. वो डरे हुए मकरा को देखते हैं, लेकिन मकरा खुद भी नर्वस होकर उनको देख रहा होता है. ही shook a rat off his tail and asked the small crocodile, why little fellow. एक स्मॉल क्रोकोडाइल था जो कि क्वेश्चन पूछ रहा था, और जो मकरा था उसको पूछता है क्यों ऐसा हुआ है. इट ऑल बिगेन विद द टॉट. सबसे पहले टॉटॉइस से शुरू हुआ ये बात. ओके ओके सेड मकरा, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच. मकरा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग बट इट डिडंट मैटर. मकरा खुद नहीं चाहता था कि वो खुद अपनी गलती को एडमिट करे, इसी वजह से इतनी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है. वो चुप करा देता है वो छोटे क्रोकोडाइल के मुंह को. ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग एंड और पावरफुल. सब सारे क्रोकोडाइल्स को पता चल गया कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फॉरेस्ट में, सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और ऑलवेज राइट, और सब हर समय सही भी नहीं हैं, वो गलत भी हो सकते हैं. दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइसेस, स्नैक्स एंड लीजर्स टू कम बैक टू पंबुपत्ती. सो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैसेज उन्होंने पूरे जंगल में भेजा. जो सारे लीजर, स्नैक्स और टर्टल्स चले गए थे उनको बुलाया. एंड व्हाट ए ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक, फैमिली आफ्टर फैमिली विथ देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्ट्रैंगलिंग बिहाइंड, shouting at their parents to wait for them. So it was a very beautiful day when all the reptiles came back to the forest. बहुत ही खूबसूरत अच्छा दिन था. अपने बच्चों को अपने पीठ पर पकड़े हुए वो लोग शाउटिंग करते करते जंगल को लौटते हैं. देखो इस पिक्चर में सारे लौट रहे हैं. In 2 months, the forest was back to normal. The rats disappeared and the insects and the smell and the world finally went back to its familiar old self. So 2 महीने के अंदर ही फॉरेस्ट का कंडीशन बहुत ही अच्छा हो गया. रैट्स चले गए, इंसेक्ट्स भी ख़त्म हो गए, और जो स्मेल आ रहा था वो भी दूर हो गया. Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send you off to dreamland? So this was the story being told by the grandfather to Prem. ये जो स्टोरी था वो ग्रैंडफादर बोल रहे थे प्रेम को. सो क्या तुम सो गए? क्या तुम एक ड्रीम लैंड में चले गए प्रेम? आई शुक माई हेड. नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग. मैं सिर्फ सोच रहा था. मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल दैम. बट व्हाट इफ दे डोंट लिसन टू मी. प्रेम बोलता है कि दिस इज़ टाइम फॉर मी टू वेंट बैक टू माई विलेज. अभी मेरा समय हो गया कि मैं अपने विलेज में चला जाऊं, और एक मेरे पास जो स्टोरी है आपने जो मुझे सुनाया है वो मैं गांव में सुनाऊं. लेकिन मैं क्या करूं अगर मुझे वो ना सुने तो. वी कैन ओनली कीप एट ईट माई सन. टेल दिस स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल. सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू. जाओ ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को बोलो, बार बार बोलो. वो तुम पर हंस सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये स्टोरी तो सच भी नहीं हो सकता.
but they may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange, funny world of ours. So एक दिन वो ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि इस फनी स्ट्रेंज वर्ल्ड में हर किसी की जगह एक फिक्स है, हम किसी को यहाँ से नहीं हटा सकते. सो जो पहले जो दंगा हो रहा था, जो राइट्स हो रहे थे स्टोरी के, इसी में इसको समझा कर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हर कोई इंसान हो. ये एग्जाम्पल देखिए वो बोल रहे थे फॉरेस्ट का, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे दुनिया में हर किसी धर्म, हर किसी जाति के लोग को अपनी मर्जी से खुद से रहने का अधिकार है. Okay, this is about the story, what happened to the reptiles. Now we shall see the question answers of this chapter. Okay, dear students, this is the answer to the questions of the chapter, what happened to the reptiles. Go through this video and write down the answers in your copies. This is the answer till question number 4, and this is the answer of 5, 6, 7. Make the screenshot and write down in your copy after watching the video, after understanding the story. Okay, thanks for watching the video. Bye.